امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو وطن واپس لانے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قوم کو بتانے کی ضرورت ہے اور وہ یہ سچ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کب آئیں گی، کیا وفاقی محتسب کے فیصلے سے؟ ویلکم بیک، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ ریسنٹلی ناظرین ایک نیوز آئی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ڈیفینیٹلی آپ لوگ ان سے واقف ہوں گے، یہ ایک پاکستانی ہے اور یہ ٹیکساس کی جیل میں کافی عرصے سے بند ہے۔ ناظرین ریسنٹلی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ریلیٹڈ ایک دل دہلا دینے والی نیوز سامنے آئی ہے، جس کے مطابق جیل میں رہتے ہوئے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کی کرنٹ ایج لگ بھگ 50 سال ہے۔ کین یو بلیو کہ ایک 50 ایئرز اولڈ لیڈی وومن کے ساتھ کس طرح کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا جنیوا کنونشن اور دوسرے رولز کے حساب سے، لیکن ٹیکساس کے جیل میں بند کیے جانے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کس قدر کمزور ہو گئی ہیں اور ان کی کیا حالت ہے، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین ریسنٹ نیوز کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ٹیکساس کے سیکورٹی گارڈ نے ریپ کیا ہے اور ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین یہ زیادتی کا نشانہ بنانا بھی ایز پنشمنٹ رکھا گیا تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے، اور بطور سزا ٹیکساس کے سیکورٹی گارڈ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کیس کی تفصیلات واشنگٹن ڈی سی میں بھجوا دی گئی ہے اور ابھی کافی زیادہ چانسز ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جیل سے رہا کر دیا جائے۔ ناظرین یہاں پر اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ٹیکساس کے جیل میں جانے سے پہلے بھی افغانستان کے جیل میں کافی عرصے تک بند رہیں، اور اس کے بعد ان کو ایک ایسے گناہ کے جرم میں جو کہ انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں، اس کے جرم میں ان کو ٹیکساس کے جیل میں کافی عرصے سے بند رکھا گیا ہے اور ان کو ہر روز تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن ابھی کے رپورٹ کے مطابق کافی زیادہ چانسز ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر دیا جائے۔ ناظرین لاسٹ ایئر جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ایک سسٹر جن کا نام فوزیہ صدیقی ہے، وہ اپنی بہن سے ملنے گئی، تو اپنی بہن سے ملاقات کرنے کے بعد وہ ریٹرن آئیں اور انہوں نے اپنی بہن کے متعلق تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ جب وہ اپنی سسٹر یعنی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملی تو اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سامنے کے دانت بھی توڑے جا چکے تھے اور ان کے سر پر گہری چوٹ ہونے کی وجہ سے وہ فوزیہ صدیقی کی تمام باتوں کو سمجھنے سے بھی قاصر تھیں۔ لیکن فوزیہ صدیقی نے یہی بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا صرف یہی کہنا تھا کہ مجھے اس جہنم سے نکالو، مجھے اس جہنم سے نکالو۔ پہلے سے زیادہ برے حال میں مجھے لگی، اور کین یو بلیو کہ روزانہ ان کے ساتھ کس طرح کا تشدد کیا جاتا ہوگا اور کیا برتاؤ کیا جاتا ہوگا ٹیکساس کے جیل میں۔ ناظرین فوزیہ صدیقی جو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہے، یہ 20 سال کے بعد اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے مل رہی تھی، اور جب یہ ان سے ملاقات کرتی ہیں تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ وہ کچھ سن سکتی ہیں اور نہ کچھ زیادہ بول سکتی ہیں اپنی بہن فوزیہ صدیقی سے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں کون اور ان کو کیوں اتنی بڑی سزا دی گئی ہے؟ ناظرین ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکی جج کے حساب سے بے قصور ہیں، لیکن پھر بھی ان کو 86 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ناظرین ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں۔ 1990 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ٹیکساس گئی تھی اسٹوڈنٹ ویزا پر اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے لیے۔ بچپن سے ہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دو چیزوں کا بے انتہا شوق تھا۔ ایک وہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ کافی زیادہ سیریس تھیں اور ان کو اسٹڈی کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ دوسرا یہ اسلام کی تبلیغ کرنے کا بھی ان کو بہت زیادہ شوق تھا، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اسی شوق اور جنون نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ٹیکساس کے جیل میں بند کروا دیا۔ ناظرین 1995 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی ہو جاتی ہے امجد خان سے۔ ناظرین یہی ایک وہ بندہ تھا امجد خان جس کی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اتنی بڑی سزا ہوئی، اور امجد خان ہی ایک وہ بندہ تھا جس نے ایک مس اسٹیٹمنٹ دینے کی وجہ سے اور ایک مس ایلیج کی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اتنی بڑی سزا دلوا دی۔ ناظرین CIA نے امجد خان کا استعمال کیا اور امجد خان کے مس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ناظرین ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے 3 بچے بھی تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بائیو کیمسٹری کے اوپر اس لیول کا ریسرچ کر رہی تھی جس لیول کا ریسرچ امریکہ کے سائنٹسٹ بھی نہیں کر رہے تھے بائیو کیمسٹری کے اوپر۔ اس کی وجہ سے USA کو ڈر ہوا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کوئی بایولوجیکل ویپن بنا لیں گی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گی، جس کے بعد ان کے ذہن کا رجحان اسلام کی طرف زیادہ ہونے کی وجہ سے ایران، پاکستان اور سعودی عرب اور دیگر ممالک کافی زیادہ امپاور ہو سکتے ہیں۔ دیٹس وائی انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اس ریسرچ کرنے سے روکنے کے لیے اتنے بڑے ٹریپ میں پھنسایا اور ان سب کا
मोहरा और इन सब का मेन जो कैरेक्टर था वो था अमजद खान, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों को करने में CIA को काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का दौर भी वो दौर था जब USA ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया हुआ था, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने ओपनली ये कहा था कि वो इस हमले के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। दैट्स वाई अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक बायोलॉजिकल वेपन बना लेती तो डेफिनेटली ये मुसलमान ममालिक को एम्पावर करता, जिसमें अफगानिस्तान भी आता है। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को यहूदियों की एक एजेंसी जिसका नाम ज़र्नेस्ट था, उन्होंने अप्रोच भी किया, और अप्रोच करने के बाद उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ये ऑफ़र भी किया कि वो ये रिसर्च और डेवलपमेंट का काम उनके लिए करें, और ये रिसर्च करने के बाद उनको जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी वेपन वो क्रिएट करती हैं, वो वेपन वो उन यहूदियों को दें ताकि वो इसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करें और अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। इसके जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और अमजद खान के निकाह के ठीक 7 साल बाद यानी कि साल 2002 को अमजद खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को डाइवोर्स दे दिया, और डाइवोर्स हो जाने के बाद CIA ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हस्बैंड यानी कि अमजद खान को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ख़िलाफ़ उतारा, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ख़िलाफ़ अमजद खान ही वो बंदा था जिसने झूठे झूठे बयान दिए और झूठे झूठे स्टेटमेंट दी। यहाँ तक कि अमजद खान ने यह भी कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो ताल्लुक़ था वो तालिबान ग्रुप से था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का उठना बैठना दहशतगर्दों के साथ था। यही नहीं बल्कि अमजद खान ने यह भी कहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने जो रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा किया है, और जो ये रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर रही हैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, ये भी वो सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान ग्रुप के लिए ही कर रही हैं, और इनका उठना बैठना भी दहशतगर्दों के साथ है। ये सारे के सारा स्टेटमेंट अमजद खान ने दिया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ख़िलाफ़, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल की कैद के लिए। नाज़रीन, अमजद खान से डाइवोर्स होने के 1 साल बाद यानी कि साल 2003 को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इनके घर से कुछ नामालूम अफराद ने उठा लिया और किडनैप कर लिया। इस वक्त ज़माना था जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, और कई लोगों के मुताबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने डॉलर के एवज़ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पकड़वा दिया, और इसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान के जेल बगराम में बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान के जेल बगराम में इतने पोशीदा तरीके से लेकर जाया गया कि किसी को इसके बारे में कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान के जेल बगराम में कैद कर रखा गया है। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में जब इस न्यूज़ को एक्सपोज किया गया कुछ सालों बाद यानी कि साल 2008 को इस न्यूज़ को एक्सपोज कर दिया गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं उनको अफगानिस्तान के जेल में बंद कर रखा गया है। इसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका में न्यूयॉर्क ले जाया गया। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बगराम जेल यानी कि अफगानिस्तान से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क ले जाने के बाद इनके केस के ऊपर बातचीत की गई और इनका केस खोला गया, जिस पर CIA ने मज़ीद झूठ बोला। नाज़रीन, CIA का कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 17 जुलाई 2008 को अफगानिस्तान से रेड हैंडेड पकड़ा गया है, और जिस वक्त CIA ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान से पकड़ा उस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक बॉम्ब के क्रिएशन में लगी हुई थी। नाज़रीन, CIA ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को तमाम बॉम्ब के इंग्रेडिएंट्स के साथ रेड हैंडेड पकड़ा गया है, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ताल्लुक अफगानिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप के साथ था। इस झूठ ने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रिएट कर दी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट को सुनाई जाने के लिए। CIA का मज़ीद कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपने बचाव के लिए CIA के एजेंट्स पर गोलियां चलाई और उन पर फायरिंग की, क्योंकि CIA ने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था उनको बगराम जेल में, और जिसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो है ज़ख़म वाज़े दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से CIA ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने हम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में सेल्फ डिफेंस की वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी चंद चोटें आई। नाज़रीन, CIA का ये कहना था, जबकि रियलिटी कुछ और ही थी। नाज़रीन, CIA की इसी कंस्पिरेसी की वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के कैद हो जाने के बाद किसी भी मुस्लिम हुक्मरान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए बात नहीं की। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कैद हुए 20 साल का अरसा हो चुका है, और इसी अरसे के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के 3 बच्चों में से 2 बच्चे को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान के जिस जेल में बंद कर रखा गया था उस जेल का नाम बगराम जेल था, और बगराम जेल से ही जब एक कैदी को रिहाई मिली और जब एक कैदी रिहा होकर बाहर आया तो उसने अपने बयान में बताया कि रोज़ाना एवरी सिंगल डे
बगराम जेल में एक लेडीज़ की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी और एक औरत बे इंतहा चिल्लाया करती थी बगराम जेल में ही। और इस चीख को सुनने की वजह से वो कैदी जो कि जेल से रहा हुआ था वो जहनी बीमारी का शिकार हो गया था और वो जहनी तवाज़न लगभग खो चुका था। नाज़रीन, इसके मुताबिक वो आवाज़ इतनी भयानक और खौफनाक हुआ करती थी कि उसको सुनना भी आम इंसान के बस की बात नहीं और उसको सुनने से भी दिल दहल जाया करता था। सो कैन यू बिलीव कि डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी के ऊपर किस कदर ज़ालिमाना टॉर्चर किए गए होंगे और किस कदर उनको मजबूर किया गया होगा कि उन्होंने जो भी रिसर्च की है बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए या जो भी उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट की गई है वो सारे का सारा वो CIA के हवाले कर दें। लेकिन डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी ने पहाड़ की तरह उनका मुकाबला किया और वो डटी रही अपने मौक़िफ़ पर और उन्होंने अपना बायोकेमिस्ट्री के ऊपर किया हुआ रिसर्च उनके हवाले नहीं किया। नाज़रीन, जस्ट इमेजिन कि एक औरत जो कि 50+ है उसको सज़ा के तौर पर रेप का निशाना बनाया जाता है और इमेजिन कि इस 20 साल के अरसे में उसके साथ क्या कुछ नहीं किया गया होगा, लेकिन स्टिल डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी ने अपने उस रिसर्च को छुपाए रखा और अपने उस रिसर्च को उन्होंने CIA और जीफ्स के हवाले नहीं किया जो उन्होंने मुसलमान ममालिक के लिए किया था। नाज़रीन, इस औरत के लिए, इस लेडीज़ के लिए मैं आपसे ना लाइक मांगता हूँ ना सब्सक्राइब मांगता हूँ। जस्ट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और ये सारे सीन्स जो कि डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी के साथ किए जा रहे हैं टेक्सास के जेल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, जिसकी वजह से क्वाइट पॉसिबल कि इनकी रिहाई मुमकिन हो। नाज़रीन, हम सबको अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इस्लाम की श्रेणी के रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए और मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक वीडियो बना सकता था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी वीडियो के ज़रिए से अवेयर कर सकता था डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी की कंडीशन के बारे में, जो कि मैंने किया। अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें ताकि इस्लाम की श्रेणी को जल्दी से जल्दी रिहाई मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हो कि डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी इस वक्त कहाँ पर हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इट्स गुड बाय।